Empowering women, empowering the world. Our slogan resonates with today's webinar series 5th day and last day on women and law, organized by Vidik Sahayata and Nani Palkiwala National Law Club. This event brings together legal expertise and support. Nani Palkiwala National Law Club, a pioneer in promoting legal awareness and excellence, and Vidik Sahayata, a trusted name in legal support and guidance, have come together to bring this opportunity to you all the participants. Today's web lecture on civil rights for women in India. Now, I would like to extend a warm welcome to our esteemed speaker, Advocate Jayaprakash Bansilal Somani, MBA Foreign Trade Law, an advocate at the Supreme Court of India with over 3 decades of distinguished legal practice and author of 65 plus books on Supreme Court case laws. Founder of JSAS Law Firm, and he lead a team of 16 associates, including 6 AORs. And our respected CEO, Dr. Priya Thakur, a champion of women's empowerment, leading Sahayata Foundation and working with multiple NGOs to promote women's achievement. Her tireless efforts inspire us all. Along with all participants, you are the driving force behind this webinar. Welcome to our speaker. Welcome you, sir. Thank you. Thanks for your nice introduction, Shruti. And very thanks to Vidik Sahayata also for arranging such type of good program. So today is last day, and last day we are covering the civil rights of women in India. So property, their property rights, everything we will cover. And some in last some lectures, few points may be repeated here क्योंकि वो civil rights में आते हैं, so that can be repeated here. तो सब civil rights एक साथ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी. So topic is civil rights of women in India, and I will explain this topic with important legal provisions and leading Supreme Court case laws. So introduction part, civil rights of a woman in India primarily concern rights relating to marriage. तो भारत की स्त्री की जो राइट्स है, सिविल राइट्स, इसमें जो राइट्स है ये रिलेटेड टू मैरिज है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी राइट्स, प्रोडक्टिव ऑटोनॉमी राइट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये भी राइट है, सिविल राइट. These rights flows from the constitution and various personal and civil laws. कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से लेके पर्सनल लॉ तक, सिविल लॉ तक, ये राइट ऐसे अलग अलग जगह पे दिखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क गारंटीज इक्वालिटी एंड डिग्निटी टू वुमन थ्रू आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15(1) prohibition of discrimination on ground of sex, Article 15(3) state empowered to enact special laws for women, and Article 21 right to life and personal liberty. These provisions form the basis for judicial expansion of women's civil right in India. So ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल जो मैंने 4 बताए हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन से वुमन को बचाते हैं. So there should not be a discrimination. All are equal before law. So now, first part is property and inheritance right. ये बहुत बड़ा civil right है. Property and inheritance right of woman. संपत्तिक और वारसा हक से मिलने वाली जो संपत्ति है उसके ऊपर वुमन के जो सिविल राइट है इसके बारे में. इसके जो गवर्निंग लॉज है वो मेन है the primary statute governing property rights of Hindu women is the Hindu Succession Act 1956 as amended by the Hindu Succession Amendment Act 2005. ये जो 2005 का अमेंडमेंट है ना हिंदू सक्सेशन एक्ट में,
That amendment gives equal co-partnership right to daughters. डॉटर को इक्वल co-partnership right मिला है इससे, placing them to par with sons in ancestral property. सन को जितना राइट है अभी उतना ही डॉटर को राइट मिला है. सो इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 6, डॉटर एज अ को पार्टनर इन हिंदू ज्वाइंट फैमिली. सेक्शन 14 इसका है प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी. पहले एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं रहता था, वो जब तक जिंदा है तब तक सी कैन एंजॉय प्रॉपर्टी, एंड जिंदा वो जब डेथ हो जाता था तो वो प्रॉपर्टी वापस उसके पिता के पास या उसके ससुर के पास या उसके पति के पास चली जाती थी. Now she is absolute owner, so she can do the will, she can give the gift, she can sell that property to anybody. will से वो दे सकती है. ये बहुत बड़ा चेंज आया है ये 2005 के अमेंडमेंट के कारण. सेक्शन 15 जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ फीमेल हिंदूज, एंड सेक्शन 16 है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. ये इसके इंपॉर्टेंट है. एंड सेक्शन 14 एब्सोल्यूट ओनरशिप, जो मैं एक्सपांड करना चाहता हूं. A female Hindu becomes the absolute owner of property possessed by her, abolishing the traditional concept of limited estate. पहले ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था? लिमिटेड estate. अभी नहीं, अभी सी इज एब्सोल्यूट ओनर. लीडिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मेरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, citation 1986 to SCC 209. The Supreme Court struck down these discriminatory provisions of the Travancore Christian Succession Act and held that Syrian Christian women are entitled to equal inheritance rights with men. Then Punit Wali versus Ramalingam, citation है AIR 1970 SC 1730. The court held that property possessed by Hindu woman after the commencement of Hindu Succession Act becomes her absolute property under section 14(1). ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जरूर पढ़नी चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट theory they have developed while giving decision in that. So law is a different print. लॉ में क्या होता है, सेक्शन समझ में आते हैं, लेकिन जजमेंट जब पढ़ते हैं तब वो सेक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आ जाता है. और लॉयर के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग केस इन दी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दैट टाइम you have to elaborate that law with the help of the citations. Citations हैं, jurisprudence हैं, इसके हेल्प से आप उसको एलेबरेट करते हैं और समझाते हैं. सुप्रीम कोर्ट में तो आपके पास अगर कोई साइटेशन नहीं है या आपके पास लीगल प्रिंसिपल नहीं है, कुछ नहीं, तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज द फाइनल कोर्ट ऑफ द लैंड. इसलिए हमको ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है. इसलिए ऑलवेज यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग द जजमेंट इफ यू आर लॉयर्स. खाली आप एक लॉयर नहीं है, लेकिन आप एक इंटरेस्ट के हिसाब से आप आज के प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग. खाली ये प्रोग्राम वुमन एम्पावरमेंट के लिए, इसलिए वुमन को उनके राइट मालूम चाहिए. इसलिए जितने भी आज पांचवा हमारे एपिसोड चालू है, सब के सब वीडियो आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे आएंगे. श्रुति विल शेयर दैट वीडियो लिंक इन our नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब का, दैट इज ऑफिशियल ग्रुप 1 एंड ऑफिशियल ग्रुप 2 है. NPNLC ऑफिस 1 ऑफिशियल 1, NPNLC ऑफिशियल 2. ये दोनों ग्रुप में से किसी भी एक ग्रुप में आप मेंबर है, देन यू विल गेट दैट लिंक. एंड देखने के बाद ये वीडियो आप अलग अलग लोगों को वापस फॉरवर्ड कर दो जिसको इसकी जरूरत है. भारत में हर नारी के तक ये सब वीडियो जानी चाहिए, क्योंकि उनको उनके एब्सोल्यूट राइट मालूम चाहिए. उनके प्रोटेक्शन के लिए कौन से क्रिमिनल लॉ हैं जो कल हमने देखे हैं, ये सब उनको मालूम चाहिए. द नेक्स्ट केस इज राधा रानी भार्गवा वर्सेस हनुमान प्रसाद भार्गवा, citation AR 1966 SC 216. The Supreme Court clarifies that after the enactment of Hindu Succession Act, a female
a Hindu female no longer holds property as a limited owner but as a full owner. ये अमेंडमेंट के बाद 2005 के अमेंडमेंट के बाद नहीं क्लेरिफाइड दैट आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, नॉट अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट पहले का केस लॉज है 1966 का, इसलिए दैट द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज दैट आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट अ हिंदू फीमेल नो लॉन्गर होल्ड्स प्रॉपर्टी एज अ लिमिटेड ओनर बट एज अ फुल ओनर. तो शुरू से ही, जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से एनेक्टमेंट हुआ है इसका, तब से हिंदू वुमन जो है ये एब्सोल्यूट ओनर प्रॉपर्टी की रहेगी, ऐसे एक केस लॉज बोलता है. रामचरण वर्सेस सुखराम, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ ट्राइबल वुमन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर इन एंसेंट्रल प्रॉपर्टी, एम्फसाइज इक्वेलिटी अंडर आर्टिकल 14. दूसरा पार्ट जो है वो सिविल राइट, मेंटेनेंस राइट्स ऑफ वुमन. मेंटेनेंस राइट्स ऑफ वुमन अराइजेस under personal law and statutory provisions. Relevant laws: Hindu Marriage Act 1955, बीच में लाइट चला गया है थोड़ा. Can you hear my? यस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में लाइट चला गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया. नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन 5G कनेक्शन, नॉट ऑन वाईफाई, क्योंकि लाइट चला गया था. अभी वो वाईफाई चालू होने में टाइम लगेगा. So, maintenance right of woman, maintenance rights for woman under personal law and statutory provisions. Relevant laws: Hindu Marriage Act 1955, Code of Criminal Procedure जिसको अभी BNSS बोलता है 1973, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. ये तीनों एक्ट के अंतर्गत वुमन को मेंटेनेंस मिलता है. इंपॉर्टेंट, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट का प्रोविजन है इसमें हिंदू वुमन को मिलेगा. मुस्लिम वुमेन्स एक्ट जो है 1986 का, इसमें मुस्लिम वुमन को मिलेगा. लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, जो अभी BNSS है, इसके अंतर्गत जो मेंटेनेंस मिलेगा ये सभी को मिलेगा. नॉट ओनली हिंदू, नॉट ओनली मुस्लिम, ऑल lady can get, because it is applicable to all equally, to all Indians. That law, IPC, CRPC, nowadays BNSS. Important sections: Hindu Marriage Act, Section 24, Maintenance Pendant Lite.
सपोज मेंटेनेंस का एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट में, तो भी सेक्शन 24 के अनुसार उनको इंटीरियम मेंटेनेंस मिल सकता है। सेक्शन 25 परमानेंट एलोमनी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 125 मेंटेनेंस फॉर लाइफ फॉर वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। याद रखना सेक्शन 124 25 जो है वो मेंटेनेंस जो है वो वाइफ के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स, ओल्ड एज पेरेंट्स जो है, दे कैन क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। साइटेशन ARI 1985 SC 945 1985 to SCC 556. Supreme Court held that a divorced Muslim woman is entitled to maintenance under section 125 CRPC. डाइवोर्स के बाद मुस्लिम लॉ में उसको मेंटेनेंस लेने की प्रोविजन नहीं है, लेकिन सीआरपीसी में है। As it is a secular remedy applicable to all citizens irrespective of religion. The judgment significantly strengthened women's rights to financial security after divorce. Then, marriage and divorce rights. Governing laws, marriage and divorce rights depend on religious personal laws such as Hindu Marriage Act 1955. ये खाली हिंदू के लिए एप्लीकेबल है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, these are applicable to inter-religious marriages specifically. Muslim Personal Laws, Shariat Application Act 1937, this is applicable to Muslims only. And Indian Divorce Act 1866-69, it is also applicable to all. Key rights of women. Women have right to divorce. याद रखना, वुमन को राइट है डाइवोर्स देने का, जुडिशियल सेपरेशन का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, वैवाहिक जीवन पुनर्स्थापना करने का राइट, मेंटेनेंस एंड एलोमनी का राइट, एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। ये सब वुमन डिमांड कर सकती है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1995 SC 1531 1531. Supreme Court held that Hindu husband cannot convert to Islam to contract a second marriage without dissolving the first marriage, as it amounts to bigamy. So, as per Hindu Marriage Act, कोई अगर दूसरी शादी करता है हिंदू, तो उसको बिगामी के कारण उसको अलाउड नहीं हो। You can pronounce that as bigamy also, but bigamy is correct word pronunciation. एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं है हिंदू में। लेकिन कुछ कुछ हिंदू अगर कुछ को बचाने के लिए अगर मुस्लिम इस्लाम ले लेते हैं, पहली शादी के बाद वो इस्लाम कबूल कर लेता है और फिर सेकंड मैरिज करता है और फिर क्लेम करता है कि नाउ आई एम अ मुस्लिम, आई कैन डू 4 मैरिजेस। सो दिस इज द मिसयूज ऑफ लॉ। तो इट इज नॉट अलाउड एज पर दिस केस लॉ। तो ये याद रखना, ऐसा कोई केस आया तो केस लॉज एप्लीकेबल आएगा, काम आएगा। The Supreme Court held that Hindu husband cannot convert to Islam to contract a second marriage without dissolving the first marriage, as it amounts to bigamy. The case highlighted gender justice concern and emphasized the need for a uniform civil code. इसलिए ये केस लॉज में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो फिर 4 शादियां, 3 शादियां, 2 शादियां, 1 शादियां, ये कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो सबको एक ही शादी करने तो एक ही, सबको 2 करने तो 2 की, 2 करने का तो सवाल ही नहीं है। एक भी बीवी संभालते संभालते प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को। और बच्चे तो बहुत अच्छा लाइफ हो गया था सिंगल का।
खाली जो मेल डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, दहेज वगैरह है, इशू है, ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ पे दोनों एजुकेटेड है, वर्किंग में है, उनके माँ बाप भी वर्किंग में हैं, तो बहुत सही ढंग से वो फैमिली चलती है। इसलिए बिगेमी चाहिए ही नहीं, कंप्लीटली जो चाहिए, खाली डिवोर्स के वगैरह जो लॉज है वो थोड़े से सिंप्लीफाई और होने चाहिए, ताकि अगर पटता नहीं है तो जल्दी की जल्दी अलग होके वापस अपने अपने रास्ते से जाने के लिए लोग तैयार होने चाहिए। इसलिए आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि जब भी कभी डिवोर्स हो ले है ना, तो म्यूचुअल कंसेंट से ही लेना चाहिए, झगड़े करके नहीं लेना चाहिए। झगड़े करो, झगड़े के बाद ही डिवोर्स होता है, झगड़े के बाद है। लेकिन अभी जब डिसाइड होता है कि डिवोर्स करना है, बैठो, मेडिएशन कर लो, जो देना लेना है वो तय कर लो। नहीं तो कोर्ट तो करता ही करता है, आप नहीं करेंगे तो कोर्ट करेगा ही करेगा। तो जो देना लेना है तय कर लो, एंड व्हेन यू हैव सेटल्ड द एलोमनी, वन टाइम एलोमनी, whatever, that time just put that papers, compromise deed with the family court grant you the mutual consent divorce। एक साल हो गया, खत्म हो। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स लेते हैं तो शान से आप एक दूसरे के फते हैं, एक दूसरे की शादी को वापस जा सकते हैं, बच्चे की शादी हो गया, एक ह्यूमन रिलेशन तो है ना आपके साथ। और फिर वो जो एक क्या बोलता है दर्द रहता है ना, पहला मैरिज टूटने का वो दर्द नहीं, क्योंकि पहला हमारा टूटा तो भी वो व्यक्ति आपके कनेक्शन में है, ऐसा है। आप एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड के साथ हम करते हैं। जब वो फ्रेंड रह जाए, वो अभी खाली आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। इतना म्यूचुअल, इतना क्या बोलते हैं इसको, मैच्योरिटी आना चाहिए। और थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर कम करती है या ऐसा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा amendment होनी चाहिए। और इतना इजी नहीं होना चाहिए जैसा ट्रिपल तलाक का था। तलाक 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 बोल दिया, में इसमें फटा
So friends, that is the rights of women. Then fourth part is workplace equality and sexual harassment. Women have civil right to safeguard conditions and equality in employment. उसको एम्प्लॉयमेंट में सेफगार्ड होना चाहिए, इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट होना चाहिए, भोग की वस्तु समझना नहीं चाहिए. शी शुड नॉट कंसिडर एज ओनली अ सब्सटेंस टू फुलफिल द लस्ट of any human being. So for that purpose, through Vishaka versus State of Rajasthan, one case laws developed. And after that case laws, after some years, one law was passed by the parliament, that is POSH Act, Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. इसके ऊपर सेपरेट हम वेबिनार लेने वाले हैं. So what is that Vishaka case law? What is the outcome of that case law? So Vishaka versus State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011. This is the case, leading case law in for AOR examination also. So you can find my 3 books on AOR examination. There are more than 65 books on Supreme Court case laws of mine. Just go on Amazon, you Flipkart, or Notion page, type Jaiprakash Somani books, or just go on Google and type Jaiprakash Somani books or Jaiprakash Somani only. You will find so many information about me. ये मैंने किया है ऐसा सब कुछ नहीं है, ये पूरे मेरी टीम है, श्रुति है, ये सब मेरी टीम जो है, ये टीम करती है सब काम, खाली मैं उसको लीड करता हूँ. सबने मिलके किया है और भगवान की कृपा है, इसलिए अच्छा काम हुआ है और भी होता रहेगा. सो द सुप्रीम कोर्ट, ये जो विशाखा केस है, इसमें बताता हूं व्हाट एग्जैक्टली आउटपुट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट फ्रेम्ड द विशाखा गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस, recognize such harassment as a violation of Article 14, 19, and 21 of the Constitution. The guidelines later form the basis of the 2013 legislation, that is POSH Act. Then fifth part is reproductive and bodily autonomy. This is related to pregnancy, whether to keep pregnancy or not, whether to terminate pregnancy. पहले क्या होता था, वुमन को राइट नहीं रहता था, उसको कंसेंट लेनी पड़ती थी हस्बैंड से, इन लॉ से. उसकी इच्छा है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की तो भी नहीं कर सकते थे. बट बिकॉज ऑफ दिस लॉ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, एक बहुत बड़ा सिविल राइट वुमन को मिला. बिकॉज ऑफ दिस लॉ, now woman can decide herself without taking any permission to whether pregnancy should be terminated or whether she should continue the pregnancy. There is no discrimination of unmarried women and married women also. Only within 24 week that pregnancy should be terminated, because that is for protection of her biological body. So landmark judgment for this is X versus Principal Secretary Health and Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi. The Supreme Court held that all women, including unmarried women, have the right to safe abortion up to 24 weeks, removing discrimination between married and unmarried women. The judgment expanded reproductive autonomy and equality. छठा पार्ट है डोमेस्टिक राइट एंड राइट टू रेसिडेंस. पहले क्या होता था, शादी करके औरत आई, झगड़ा हुआ, पति बोलता था निकल जा मेरे घर से, या कभी कभी पिताजी है, पिताजी का घर है, पिताजी बोलते थे निकल जाओ हमारे घर से, दोनों भी, हस्बैंड भी निकल जाओ, वाइफ भी निकल जाओ. अभी ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज वुमेन हैव द सिविल राइट टू रिसाइड इन देयर मैट्रिमोनियल होम एंड सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज. वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है अगर उसको घर से निकालने की कोशिश करते हैं, वेदर सी हैव ओन दैट होम और नॉट. उसके नाम पे वो घर है तो वो वही निकालेगी सबको.
बट उसके नाम पे घर नहीं है तो भी उसको राइट है, उसको मेंटेनेंस का जैसा राइट है, एल्यूमिनियम का राइट है, वैसा राइट टू रिसाइड भी है. So, provisions of this Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, ये जो इसके जो प्रोविजन ये बता देखेंगे हम अभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जिसको हम शॉर्ट में डीवी एक्ट बोलते हैं. सेक्शन 17, राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड. देन सेक्शन 18, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स. देन सेक्शन 19, रेसिडेंस ऑर्डर्स. देन सेक्शन 20, मॉनिटरी रिलीफ. The Act provides civil remedies including residence protection orders and compensation. Part 7, Sridhan and Women's Absolute Property. So now Sridhar have a different legal status since 1985 because Sridhan is now her exclusive property. What is Sridhan? Sridhan का मतलब लोग ऐसा समझते हैं only ornaments. Gold ornament is called Sridhan. No. Any property gifted to a woman before, during, or after marriage, and it remains her exclusive property now. शादी के पहले कुछ गिफ्ट मिले हो, शादी के बाद मिले हो, शादी के समय में मिले हो, वो गिफ्ट प्लॉट का हो, जमीन का हो, गाड़ी का हो, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, सोना हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, ऑल आर कॉल्ड श्रीधन. ये प्रोटेक्टेड है, वो उससे कोई छीन नहीं सकता श्रीधर लेडी से. लीडिंग सुप्रीम कोर्ट केस लॉज है इससे रिलेटेड है. प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार. साइटेशन है AIR 1985 SC 628. The Supreme Court held that Sridhana is the absolute property of a woman and the husband or in-laws are merely custodian if they hold it. अगर सास के पास रखने के लिए दिया है और सास बोलती है मैं दूंगी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. बराबर है. तो ये उस समय सास इज द कस्टोडियन ऑफ, दैट इज द ट्रस्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्नामेंट्स ऑफ दैट डॉटर इन लॉ. सो नाउ husband and in-laws are the merely custodian if they hold that Sridhan of that daughter-in-law. So दोस्तों, these are the civil rights of women. प्रोटेक्शन है अच्छा, बट अवेयरनेस शुड बी देयर. काफ़ी लेडीज़ को अभी तक ये अवेयरनेस मालूम नहीं है, इसलिए जस्ट फॉरवर्ड दिस ऑल आवर वीडियोस टू दी ऑल वुमन इन इंडिया. वुमन की जो ग्रुप है उनको फॉरवर्ड करते रहिए. नाउ कंक्लूजन. सिविल राइट्स ऑफ वुमन इन इंडिया हैव इवॉल्व थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज. इसका सिविल राइट्स का वुमन का संक्रमण कैसा हुआ है, कहां से शुरू हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी से हुआ है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म से हुआ है, एंड प्रोग्रेसिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, इसके कारण और भी एलोबरेट हुआ. की एरियाज ऑफ प्रोटेक्शन इंक्लूड्स, इतने प्रोटेक्शन अभी श्री को है: प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स, मेंटेनेंस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैरिज एंड डाइवोर्स राइट्स, वर्कप्लेस डिग्निटी एंड इक्वालिटी, reproductive autonomy, and protection from domestic violence. So these are the rights protection women can enjoy in India. Through landmark judgment, the Supreme Court has consistently expanded the scope of gender equality and dignity under Article 14, 15, and 21 of the Constitution. Jain. So this is it. Now, Shruti, you can unmute yourself and conclude this session. Sir, today our CEO Priya ma'am will conclude this session. Okay, okay. Yes. Yes. Yes.
Priya ma'am, you can unmute yourself. Yes, sir. Can you start your video if it is comfortable to you? Yes. Your voice is not. एक मिनट है. Just मैं once again. Yes. Now you can unmute yourself. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. First of all, I just wish good evening to everyone. Thank you for coming and joining our sessions for 5 days. एंड हमारा थीम ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लोग बातें करते हैं, इतने सारे लॉज अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ने इतने बार केसेस से हमें सपोर्ट किया है, बट द थिंग इज लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट इस पास्ट सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे भी नहीं पता था, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे एक्चुअल राइट्स क्या है। तो सर ने हमने सर से अप्रोच किया कि सर हमारे राइट्स के बारे में लोगों को बताइए, और उन्होंने इतना कीमती वक्त दिया, इतने अच्छे से समझाया है इन लास्ट 5 डेज में। ये सिर्फ आज 5 दिन की ही कंक्लूजन नहीं है, बल्कि आज से जब तक ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा लोगों को इसका बेनिफिट होगा। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, हमें सारे लॉस के बारे में बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक सर, जब भी आप हमारे चैनल पे आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, सबसे ज्यादा मुझे नहीं पता बाकी किसी का, बट सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ जेन्यून नॉलेज मिला है। इसलिए आई फील सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन माय प्लेटफॉर्म, एंड वी ब्लेस गुड हेल्थ टू यू, एंड थैंक हैप्पी एम्पावरमेंट women session to all of us. Thank you, sir. Thank you, Shruti. Thank you. और एक बात आई वांट टू गिव द रिमार्क कि जो आपको अच्छा लगता है ना, ये सब चीज़ें करना, नए नए चीज़ें के ऊपर सेमिनार अरेंज करना, आपने काफ़ी मेरे सेमिनार अरेंज किए हैं। इसका कारण यू आर रनिंग वन लॉ फर्म, ओके, विधि सहायता, जिसके थ्रू आप पूरे ट्रायल कोर्ट के इधर के उधर के जो भी मैटर्स है, ये मैटर्स हैंडल करती है, उनको सॉल्यूशंस देती है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के मैटर हैंडल करते हैं, आफ्टर हाई कोर्ट मैटर में हमारे पास आते हैं, बट यू आर हैंडलिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑल हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के मैटर भी आप हमारे पास आते हैं। तो सब मैटर को आप देखती है, सब देखती हैं, आपकी जो टीम है वो भी अच्छे काम करते हैं। इसलिए यू आर एनर्जेटिक, ये सब आपको अच्छा लगता है, इसलिए ऑलवेज आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेती है। और बीच में थोड़ा सा हॉस्पिटल में जाना पड़ा आपको किसी चक्कर में, तो थोड़ा सा आप एक दो दिन नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद आज आप है या नहीं है। सो आई आस्क श्रुति टू कंक्लूड दैट, बट यू कंक्लूडेड इट, और आपको ठीक ठाक देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है अभी। हम एक्चुअली फैमिली का इशू था थोड़ा सा, बट ठीक है, सब अभी ओके, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ठीक हो गया आपको ना? देख के मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, तो मैं हमेशा कंटिन्यू करूंगी आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। चलो, ओके, बाय। टेक केयर। थैंक यू, ओके।